Hello friends, good morning. First of all, I welcome you all in my channel Vikas Tutorial. And today, this is a set of some questions, in and that is very important for different types of exams. Now, come to the moot point. This is your question. In it, it is written: select the most appropriate options that can substitute the inverted comma segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. If there is no error, you may write no substitution required. But if you find there is something error in it, then you will have to choose these options. And which option will be correct, we will have to select. I don't have some money at all. Question is, I don't have some money at all. This is negative sentence. And if anybody wants to say that I don't have some money at all, actually he wanted to say that he doesn't have any money at all. So here with negative, this negative statement will not take positive word. Here we should write any. I don't have any money at all. Any is the correct one. So we will choose option C is the correct answer. And this is correct. Now we see explanation. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में एनी का प्रयोग करना चाहिए, सम का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में करना चाहिए. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. नाउ कम टू द सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the option. This is the question. Select the option that can be used as a one word substitute for given group of words. Here the question is unable to act. Unable to act. Unable to act means not able to do anything. This is called inert. Option D. We see which option is correct. Inert is correct answer. Unable to act means inert, निष्क्रिय या अक्षम. लैक्स का मतलब होता है शिथिल. लैक्स मीन्स शिथिल. आइडल मीन्स आलसी. लेजी मीन्स आलसी, सुस्त. बट अनेबल टू एक्ट, निष्क्रिय. इनर्ट इज द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट द सी क्वेश्चन. Select the most appropriate antonym of the given word. Rash. This is the question. Most appropriate antonym of the given word rash. Rash means careless. The person who is very careless is called rash. So unruly, careful. Careful is the correct one because careful means सावधान. Defiant, wayward, these things are wrong. So we will choose the option first, careful. This is correct. Rash means उतावला, लापरवाह, and antonym is careful. Cautious, prudent, considerate. Unruly का मतलब है अनियंत्रित. Unruly, ये बी वाले ऑप्शन का हिंदी है अनियंत्रित, means out of control. And wayward means मनमौजी. You must see here, wayward means मनमौजी या हठी. एंड डेफियांट का मतलब है अवज्ञाकारी. अवज्ञाकारी मीन्स नॉट ओबेडिएंट. सो द थ्री ऑप्शन जो है, थ्री क्वेश्चंस का जो आंसर है वो भी हमारा सही हो गया. नेक्स्ट 4 में देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स. आइडियम्स इज एट स्नेल्स पेस. स्नेल्स पेस का मतलब होता है चाल, एंड स्नेल्स मतलब घोंगा. तो एट अ स्नेल्स पेस. एट अ स्नेल्स पेस मीन्स पीसफुल्ली. नॉट करेक्ट. केयरलेसली, क्विकली, वेरी स्लोली, बिकॉज स्नेल इज वेरी स्लो.
snail is too slow, that's why very slowly is will be the snail's pace, and very slowly is the correct answer. We choose very slowly. Yes, this is correct. At snail's pace का अर्थ है very slowly, मंद गति से. Due to traffic jam, vehicles are running at a snail's pace. Come to the next. Select the most appropriate option that can substitute the inverted commas segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. We have to find out here the substitution, and here this word talk, we have to change this word talk. Don't disturb me while talk to someone on the phone. This is the present tense. The person is claiming, don't disturb me while I am talking to someone on phone. Don't disturb me. So the correct answer is B, in my opinion. Now let's check which one is correct. I am taking is correct. while के बाद क्लॉज हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए. इसे इस प्रकार लिखा जाना चाहिए, while I am talking. चलिए, कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए. यहाँ पर देखिए लिखा है कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट में ही, पास्ट में भी हो सकता है. बट हेयर द सिचुएशन इज बीइंग क्रिएटेड, डोंट डिस्टर्ब मी इन प्रेजेंट. सो हेयर वी विल राइट आई एम टॉकिंग. दिस इज द करेक्ट वन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. We have to find out the grammatical error in this part. Mother beat Jenny by a stick. Look, this is the wrong thing. By a stick is not correct. As we write with a pen. जब भी हम लोग कलम को हाथ से पकड़ के लिखते हैं तो विथ ए पेन, तो यहाँ पर भी छड़ी से मारते हैं पकड़ के उसको, तो विथ अ स्टिक होना चाहिए. मदर बेट जेनी विथ अ स्टिक फॉर गोइंग आउट विदाउट परमिशन. सो बाय अ स्टिक इज रॉन्ग. दिस इज द रॉन्ग एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ये जो रॉन्ग है यही हमारा करेक्ट आंसर है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रामेटिकल एरर इन विच पार्ट. सो हियर द बी पार्ट इज करेक्ट. जब कोई ऑब्जेक्ट जिसे हाथ में लेकर चलाया जाए तो उसके लिए बाई के बदले विथ का प्रयोग करना चाहिए, अतः सही विथ है, स्टिक है, और बाई स्टिक लिखा है तो यही ग्रामेटिकल एरर है. नाउ 7 नंबर. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. द पुलिस ब्लैंक द प्रोटेस्टर्स फ्रॉम एंटरिंग द पार्लियामेंट. देखिए, इसमें जो बेहतरीन बात है कि यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, और फ्रॉम जो है वो WFP को फॉलो करता है, वर्ड फॉलोड प्रीपोजिशन. तो वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, प्रिज्यूम, प्रोटेक्ट, परसुएड, इन तीनों के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि इन तीनों के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है, बट प्रिवेंट के साथ मैं पूरा श्योर हूँ कि प्रिवेंट के बाद फ्रॉम लगता है. अब हो सकता है लगता होगा प्रिज्यूम्ड के साथ भी, प्रोटेक्टेड के साथ भी, परसुएडेड के साथ भी. तो यहाँ पर देखते हैं और क्या बात है, तो प्रोटेस्टर्स को रोकने की बात है. प्रिवेंट मतलब रोकना, तो प्रिवेंटेड ही सही है. अंदर आने से रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग. प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिफर. डिफर का मतलब होता है टालना. टालना, डिफर मीन्स टालना. तो मैच गलत, बैलेंस गलत, कन्फ्लिक्ट गलत. पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चीज को टाल देना. सो सिनोनिम ऑफ दिस डिफर इज पोस्टपोन. करेक्ट. सिनोनिम पोस्टपोन, अवॉइड, अवॉइड, स्टेव ऑफ. These are the synonym of differ. So now the next. Select the option that can be used as a one word substitution. Here this is your question. One word substitution for the given group of words, things which are of the same kind and of the same dimension. मतलब कि क्या होता है ये कि ऐसी
चीज़ें जो सेम काइंड हो एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस। तो जो बच्चे साइंस पढ़ते होंगे उनको पता होगा दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस। इसको कहते हैं एक ही जात वाला। होमोजेनियस जो जैसे चीनी और पानी का घोल। तो हारमोनियस ये नहीं होगा, बैलेंस्ड भी गलत, प्रेजेंट भी गलत, तो होमोजेनियस करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर सही है, सी। सजातीय कहते हैं प्लेजेंट का मतलब सुखद, बैलेंस्ड मतलब संतुलित और फ्रेश का मतलब ताज़ा। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑफ द सेम डायमेंशन एंड सेम काइंड, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, होमोजेनियस। नाउ द लास्ट वन इज 10. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मतलब होता है हंसी मजाक से भरा हुआ। सो द डल इज नॉट द साइनोनिम। टायरसम मीन्स थकावट, थका हुआ। वाइज मीन्स बुद्धिमान। लाफेबल इज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ अम्यूजिंग इज लाफेबल। सो लेट अस सी द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। अम्यूजिंग मीन्स मनोरंजक एंड लाफेबल फनी humorous is the synonym. Tiresome means thakau. These were the 10 questions, and these all questions were asked in different types of exams in SSC, banking, clerkial exams. Thank you for watching everyone. Now I will bring some more